Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm at Indore airport because I am traveling to Kashmir. It's a very good and bright morning for me because I'm heading to another destination which is Kashmir. It was long due on my bucket list, though I've been there to Vaishno Devi once. So this is my first time to Pahalgam, Sonmarg, Gulmarg and all those places, and I'm very excited about that. So stay tuned for all the fun. And so I'm traveling with my husband, and it's not a honeymoon, it's just our, you can say, a start to a honeymoon, and it's a mini honeymoon trip because we have planned many upcoming trips as well for you guys and for us as well. It was on my list for so long, but I couldn't make it because of so many reasons, like you all know, COVID and the first wave and the second wave went. So now finally it's happening. Say hi. Guys, I'm waiting. The boarding call has been done and I'm still waiting for my husband. पता नहीं क्या कर रहे थे देर से वॉशरूम में. I think he's going to make us miss our flight. मैं उसको छोड़ूंगी नहीं आज. So we have reached श्रीनगर, बट सबसे बड़ा स्यापा हो गया हमारे साथ. हमारे पास सिम ही नहीं है. हमारा सिम काम ही नहीं कर रहा बिकॉज कश्मीर में अपेरेंटली प्रीपेड नेटवर्क्स नहीं वर्क करते. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट वी आर गोइंग टू बाई अ पोस्ट पेड सिम बिकॉज कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स वरीड हो जाएंगे. सो फाइनली मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि एयरपोर्ट पे पहुंच के आई कुड सी स्नो एंड लाइक आई वाज सीइंग स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. We have left the airport. जैसे तैसे मैंने फ़ोन अरेंज करके ड्राइवर भैया को कॉन्टैक्ट किया एंड फाइनली वी आर गोइंग टू पहलगाम. एंड आई कैन टेल यू, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी वाइब लग रही है. लाइक बहुत ही रिफ्रेशिंग ब्रेक है. एंड जस्ट अब जैसे ही कश्मीर में एंटर करते हैं तो यू कैन रियली फील कि ये सही में जन्नत है. बिकॉज सो ब्यूटीफुल. सो मुझे भैया ने बताया ये सैफरॉन का खेत है. So guys, we have taken a pit stop at Kisan Kesar to have kava and we had a washroom break over here. Guys, मैं जा रही हूँ अंदर देखने कावा कैसे बनता है. ये हमारे थे ना से मैडम, यहाँ से देखिए. अच्छा, ये क्या है? ये वैरायटी सारी जारी कावा. अच्छा, ये क्या है? रेड वाला गुलाब के पत्ते और ये अदरक और ये तो ये ऐसे बनता है. Now I'm going to try it and give you my review. For the first time I'm having kava. It's nice. मुझे लग रहा है मैं कुछ बहुत सारा ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, but it's nice. यहाँ पे केसर मिलते हैं सर. So this biryani lover found biryani. He couldn't wait, so he wanted to eat some on the way. Did you like the biryani? Nice. इतना सुंदर लग रहा है ना. देख यहाँ का नेचुरल लैंडस्केप भी कितना सुंदर है. देख अभी तक तुम पहाड़ों पे भी नहीं चढ़े हैं, बट फिर भी इतना सुंदर लग रहा है. We are on our way to Pahalgam. Basically I'm on a vacation, but this is what I'm doing. From this phone I'm doing all my brand work, and then this guy wants his head massage, and then I am not even able to enjoy the view. And then people say कि digital creators करते ही क्या है, वीडियो बनाते हैं, फोटो एडिट करते हैं, and then they earn money. It's not that easy. We are always working. We are always on the go. We are always ideating. हम लोग कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं and उस पर implement करते हैं, and then we execute our ideas. So you know, nothing in life is easy, and if you have big dreams, you have to keep working hard for it. It's not going to come that easy to you. We have reached a hotel. This is the Chinar Resort. Background you can see those mountains, snow-clad mountains. So we are entering the reception.
बोलो, अब बोलो कैमरा के सामने बोलो। बिजनेस क्लास में जाऊँ तो मैं इकोनॉमी से पूछूं। क्यों? नींद दुखती में। तुम मुझे क्यों उसमें भेजोगे? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ बिजनेस में। क्यों? मैंने इसको अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कैच। धक्के खाने की, बस की धक्के खाने की आदत है। Shut up, guys. There are two reasons why I booked this early morning flight. One was the rates were too high for all the afternoon and afterwards flights, and the second reason was that कि हम जल्दी आ गए। भले हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, लेकिन अब हम पूरा दिन आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, सो दैट हम अपनी ट्रिप कल बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। बट दिस गाय इज गेटिंग एंग्री बिकॉज उसको बैठना एकदम पसंद नहीं है। तो सुबह से ये बैठ ही रहा है, तो ये थक गया, तो अब ये मेरे को बोल रहा है कि ये मेरे को ट्रेन के धक्के खिलवाएगा, मेरे को इकोनॉमी क्लास में बैठाएगा और खुद बिजनेस क्लास में आएगा हम लोग जब भी ट्रैवल करेंगे। जस्ट सी हाउ मीन ही इज। पूरे रास्ते ये सोते हुए आया है मेरे लैब पे, उसके बाद भी इतना कंप्लेन कर रहा है, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, और ये उल्टा मेरे पे ब्लेम डाल रहा है कि ये मेरे से ज्यादा थक गया है। Hello everyone, so today is day 2 of my trip and we are heading to Aru Valley, Betab and Chandanwadi because this was the first thing in our itinerary. Yesterday was kept for leisure and just roaming around the property. So today actually our trip starts. Now we are heading towards the Aru Valley and I'll keep showing you what comes in the way. अभी के लिए आप ये view enjoy करो। So the name of this river is Leather River and ये मेरे होटल से भी पास हो रही है, and मैं सुबह सुबह I could hear the gushing sound of the stream. So इस Leather River में राफ्टिंग भी होती है, and 90% the river is in Pakistan area and 10% is in Indian area. तो मुझे अभी गाइड भैया ने बताया कि हमारे होटल से जो ये रिवर जा रही है एंड लाइक टुवर्ड्स पहलगाम, दिस रिवर का जो वाटर है इट कम्स फ्रॉम द अमरनाथ। सो ये जो पानी होता है ये इतना ठंडा होता है कि आपको करंट लगेगा अगर आप उसको टच करोगे। सो हम अभी ऊपर वैली में जा रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो। अभी हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, वी वोक अप वेरी लेट, सो आई डोंट वांट टू डू एनी डिलेज। जस्ट हियर द साउंड ऑफ द वाटर। लेकिन मैं तो यहाँ पे बैठ के बहुत सारा एंजॉय करने वाली हूँ। सो अप्रैल में आप यहाँ पे राफ्टिंग भी कर सकते हो, अभी बंद है बिकॉज द लेवल ऑफ वाटर इज़ वेरी लो एंड यू कैन सी द स्नो इज देयर। अपने होटल से हम टैक्सी स्टैंड पे आए हैं बिकॉज आपके पास खुद की पर्सनल व्हीकल होने के बावजूद आपको यहाँ पे व्हीकल चेंज करनी पड़ती है। सो वी हैव गॉट दिस, सो वी हैव टेकन द टैक्सी फ्रॉम दिस टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड to head towards the Aru Valley, Betab Valley and Chandanwadi. You can also go for a washroom break or to buy some chips or cold drinks from here as well. So yeah, this is the first stop towards the Aru Valley and the Betab Valley. As you can see, मेरा husband ने इतना सारा कचरा stop कर लिया because he loves to eat all of this shit. There are a few local shops here as well. Loving this view, I can't tell you. सही में लग रहा है कि कहाँ आ गए हैं, लग ही नहीं रहा इंडिया में। थोड़ा स्लो करो। गाइज मैं 2 बार गिर चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से, दो आई वॉज वेयरिंग बूट्स एंड ऑल। तो बी केयरफुल वाइल यू आर वॉकिंग इन द आरू वैली। एंड हमने बहुत मस्ती की, स्लेजिंग किया एज यू हैव सीन अर्लियर इन द वीडियो। एंड नाउ वी आर परचेजिंग क्रैनबेरीज एंड ब्लूबेरीज। जब हम श्रीनगर से पहलगाम आ रहे थे तो दे वर लाइक वेरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स फॉर केसर एंड फॉर ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, तो वहाँ से मत खरीदना एंड ऑल बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली। बट यहाँ से लोगे तो इट्स वेरी चीप एंड अफोर्डेबल, सो डेफिनेटली बाय आरू वैली के सामने ही।
आज स्लेजिंग की एंड आरू वैली में. नाउ वी आर हेडिंग टू बेताब वैली एंड वी हैव टेकन अ ब्रेक फॉर मैगी बिकॉज हमें बहुत भूख लग रही थी. दो वी हैड क्रैनबेरीज एंड ब्लैकबेरीज. इट्स वेरी टेस्टी. सो आई वुड सजेस्ट कि श्रीनगर से मत परचेज करना. जब आप आरू वैली बेताब वैली आते हो तो आप जितना हाइट पे ऊपर आते हो तो उसके रेट्स कम होते जाते हैं. सो ट्राई टू परचेज फ्रॉम देयर इटसेल्फ एंड I would suggest Aru Valley में you need 1.5 or 1 hour max and then go to Betab Valley and the taxi people and your guide will try to convince you to visit those 7 sightseeing points before coming to Aru Valley, Betab Valley, but don't do that बिकॉज वो आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर लेगा तो आप आरू वैली और बेताब वैली में ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाओगे. सो दैट वाज अ वाइज डिसीजन टेकन बाय माय हस्बैंड कि हम पहले आरू वैली और बेताब वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं. उसके बाद हम जाएंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो लोकल साइट सीइंग को. और अगर हमें आज टाइम नहीं भी मिलता है तो हम कल भी उसको विजिट कर सकते हैं बिकॉज कल हमें श्रीनगर जाना है और डल लेक जाना है. सो वी हैव इनफ टाइम इन हैंड. So go for that and yes we also purchased dry fruits for so यहाँ पे dry fruits आपको अच्छे quality में और अच्छे rates में मिल जाएंगे. So definitely purchase from here if you like having apricots and all and walnuts. So we are on our way to Betab Valley and कितना सुंदर लग रहा है यार. लोगों के घर भी इधर बने हुए हैं and streams भी flow कर रही हैं and backdrop पे इतने सुंदर सुंदर mountains भी हैं. यहाँ पे सारे hotels. Okay. So we have reached the Betab Valley and there is a stream flowing by जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी. Wait, let me show you. You can see the stream. भैया गिराना मत यार. खुद खराब करेगा. आरू वैली में गिरा दिया था मेरे को. ये काम से 3 बार गिराया आरू वैली में. यहाँ पर एक बार नहीं गिरेगा. एक बार भी नहीं गिरेगा. आप डरो. यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है. काम बताएगा ना काम. अच्छा मैं बताऊंगा. यहाँ पर पहले बना बेताब. अच्छा. वो तो सलमान खान कहाँ रहता था? सलमान खान नहीं. इसमें सलमान कहाँ है? नहीं बजरंगी भाईजान में तो सलमान है ना. उतरो यहाँ पर. उतरने थोड़ा. अच्छा. स्विट्जरलैंड में है. So this is called the heart of Kashmir. This is the Betab Valley and this is called the Betab House. And now we have asked the guide to get us some Maggi and pakoda. So we're going to enjoy this view and eat. पूरा बर्फ में घुस गया. नस चढ़ गई गोलू. नहीं बस बर्फ लग गए. ओहे राम. So now we are going to our last point in the Betab Valley. It's near the river. And यहाँ पे एक बहुत अच्छा मॉस्क है जहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है एंड बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा है एंड बहुत सूदिंग लग रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ये जो पानी आ रहा है ये अमरनाथ से आ रहा है. सो व्हेन यू एंटर बेताब वैली आपको 100 रुपीज़ टिकट एंट्री पे देना पड़ता है. तो देयर विल बी मेनी पीपल विथ पैकेजेस की 5000 में वो आपको ऐसे चेयर स्लेजिंग करा देंगे एंड 6 पॉइंट्स विजिट करा देंगे विद अ गाइड एंड ऑल एंड दे चार्ज यू 5000. सो डोंट गो फॉर देम. दे आर जस्ट फूलिंग यू एंड इससे बेटर है आप एंट्री टिकट. हाँ वेट आई बता रही हूँ भैया आप टेंशन मत लो. वो दूसरे वाले भैया के बारे में बता रही थी. हाँ फिर आप अंदर आना जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे तो वहाँ पे एक पूल टाइप वाटर जा रहा है स्ट्रीम. वहाँ पे ये भैया लोग बैठे रहते हैं. ये लोग 1000 रुपीज़ में आपको विद बूट्स ये 6 पॉइंट्स कवर करा देंगे. सो डोंट गेट फूल्ड बाय पीपल आउटसाइड द बेताब वैली. फर्स्ट यू एंटर द बेताब वैली एंड देन these bhaias will get you the car chair sledging and will help you cover all these 6 points. क्योंकि अगर आप पैदल चलना चाहते हो आप चल सकते हो बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड फिर आपको दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होगी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है. तो इट्स बेटर टू टेक द चेयर स्लेज बिकॉज इट्स गोइंग टू सेव योर टाइम एंड देन यू कैन स्पेंड दिस टाइम समवेयर एल्स. सो दैट वाज माय सजेशन. हमारा लास्ट पॉइंट है. तो ये करे कस्ता का अब हम कैसे चलेंगे दादा? यहाँ फोटो उठाए ना. हाँ हाँ नहीं खिंचाना.
बस व्यू देख लिया। फॉर लंच, अभी लंच का टाइम तो हो चुका है, लाइक इट्स 5 PM नाउ, बट आई वॉज वेरी हंग्री क्योंकि प्रॉपरली खाना ही नहीं खाया है, बिकॉज मुझे जैसा खाना पसंद है वैसा मिल ही नहीं रहा था। सो फाइनली आई फाउंड दिस प्लेस कॉल्ड पंजाबी रसोई इन पहलगाम। सो हमारा आरू वैली एंड बेता वैली कंप्लीट हो गया। सो नाउ आई विल बी हैविंग माई लंच ओवर हियर। So guys, my day 2 in Pahalgam and my last day in Pahalgam was awesome, and tomorrow we are going to check out for Srinagar, and then we have a plan to visit the Dal Lake and the local sightseeing in Srinagar as well. So that was all for Pahalgam, and I'm very excited for tomorrow as well. So right now I just finished all my pending work, and now Golu is watching Crime Patrol. He's almost asleep. Now I'll also go and sleep, and then I'll catch you with you guys tomorrow. Bye guys. So today now we are checking out of Pahalgam from Chinar Resort and Spa. It was a very nice hotel with a gorgeous view. I'm really going to miss my balcony view. It is so peaceful out here. Like मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, but I have to go because all good things come to an end, so that better things can come in our life. So now we are heading to Srinagar. हमारा आज का प्लान है डल लेक एंड टू विजिट दोज 3 गार्डन्स, फेमस गार्डन्स इन श्रीनगर, एंड देन कल हम गुलमर्ग जाएंगे एंड परसों सोनमर्ग। सो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, लाइक इट वॉज मोर देन आई एक्सपेक्टेड। एंड गिविंग माई रिव्यू अबाउट द होटल, खाना थोड़ा बेटर हो सकता था, बुफे में ऑप्शंस थोड़े कम थे फॉर वेजिटेरियन लाइक मी। नॉन वेजिटेरियन के लिए ठीक था, 2-3 ऑप्शंस थे, और breakfast could have been better. Otherwise room service was top notch, ambience was very nice, gentry was too good, and room के interior से आपने हमारे room tour में देख ही लिया, it was very nice. So yeah, just मेरे को कोई complaints है तो it is regarding the food, तो वो थोड़ा better हो सकता है. Otherwise it's all in one of a good option for you to stay in Pahalgam. Bye bye to this beautiful view. I'm going to miss this so much. So this is the reception area. Here you have a coffee house, and this is the restaurant area where all the buffet is provided. Reception area. Now I'm going to show you the garden. So yeah, this is the garden area. ये भी विंटर्स में पूरा ऐसे हो जाता है, बट व्हेन इट्स द टाइम ऑफ स्प्रिंग एंड समर्स इट्स ऑल फिल्ड विथ लश ग्रीन ग्रासेस एंड द ट्रीज आर फिल्ड विथ ग्रीन लीव्स. सो या दिस इज द बैक साइड ऑफ द होटल. ये इसका गार्डन है, एंड इसके पीछे देयर इज अ रिवर स्ट्रीम फ्लोइंग व्हिच कम्स फ्रॉम अमरनाथ, एंड दिस इज द स्टाफ क्वार्टर्स. And then this is the view of the hotel from the outside.